السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرسالہ۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات ہر صورت 8 فروری کو ہی کروانے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر غور کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو دونوں صوبوں میں امن و امان کی صورتحال پر بریف کیا گیا۔ دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے آگاہ کیا گیا۔ خفیہ اداروں کے حکام نے دونوں صوبوں میں تھریٹ سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نگراں وزیر داخلہ گوہر اعجاز نے کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ انتخابات کے انعقاد پر کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن کا انعقاد ہر صورت نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن یقینی بنائے گا۔ انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ تمام افواہیں دم توڑ گئیں، الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، جس میں IG خیبر پختونخوا، IG بلوچستان پولیس بھی شریک ہوئے۔ نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز اور سیکرٹری داخلہ آفتاب درانی بھی اجلاس کا حصہ تھے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ دونوں صوبوں میں سیکیورٹی کی صورتحال پر متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کی گئی تھی۔ میڈیا سے گفتگو میں نگراں وفاقی وزیر داخلہ گوہر اعجاز کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہونے والے واقعات کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں۔ انتخابات کے انعقاد پر کسی کو کوئی شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے۔ 8 فروری کا الیکشن ہے وہ اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے ہر صورت میں چیف الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ جو ہے اس کو انشور کرائے گی، اور ہر صورت میں الیکشن۔ خیبر پختونخوا میں امیدوار کی ہلاکت اور بلوچستان میں بدامنی کے واقعات کے بعد الیکشن کمیشن میں اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی غیر رسمی گفتگو کہا ہے الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں۔ اسی بارے میں بات کرتے ہیں، عاطف بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس، بتائیے۔ جی، چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی گئی ہے، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں ہے۔ انٹرنیٹ سروس کا معاملہ سامنے آیا تو ہمارا EMS جو ہے وہ آف لائن کام کرے گا۔ آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی امن و امان اور الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے۔ امیدواروں، ووٹر، انتخابی دفاتر کی سیکیورٹی پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس وقت ضمنی انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، تاہم اس حوالے سے آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو خدشات تھے، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے حکم پر تحریک انصاف کے جو وکلاء کا وفد ہے وہ الیکشن کمیشن حکام سے ملے۔ تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود الیکشن کمیشن میں کوئی تحریری درخواست نہیں دی۔ تحریک انصاف نے بمشکل 3 نام دیے جن کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھینے گئے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کی جو میڈیا سے غیر رسمی گفتگو ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ عام انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں بلکہ 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ جی، بہت شکریہ عاطف، اس بارے میں آپ بتا رہے تھے۔ ادھر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ میں بچہ ہوں اور ڈر جاؤں گا، تو یہ ان کی بھول ہے۔ ہم دہشت گردوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کچھ قوتیں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر میں وزیر اعظم بنا یا جیالہ وزیر اعلیٰ بنا تو ان کی تمام سازشیں ناکام ہو جائیں۔ میں دہشت گردوں کا سر کچلوں گا۔ خوشدار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے لاہور کے سیاستدانوں کی وجہ سے مہنگائی اور دہشت گردی کا بوجھ اٹھانا پڑا ہے۔ ان کی حرکتوں سے سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ صرف عوام اور بلوچوں کا خون رستا ہے اور خون ہی ان کا سستا ہے۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی میں حل کر سکتا ہوں۔ کوئی بلوچستان اور وفاق میں دراڑیں ختم کر سکتا ہے تو وہ واحد سیاستدان میں ہوں۔ تمام قوتوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، مگر عوام کے حقوق پر سودا نہیں کروں۔ اگر کوئی بلوچستان کے عوام اور وفاق کے درمیان دراریں پیدا کرنے چاہتے ہیں تو واحد بلاول بھٹو زرداری ہے جو یہ سازش بھی ناکام کرے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے، ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے کہ شاہد یہ تو بچہ ہے، یہ تو خوف زدہ ہو جائے گا، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم شہیدوں کے جماعت ہے، ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے مگر کسی دہشت گرد کے سامنے جھک نہیں سکتا۔
ایک طرف ایک تاریخی معاشی بحران ہے، یہ پرانی سیاست کی وجہ سے، تخت لاہور کے لڑائی کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کی حرکتوں کی وجہ سے سب کچھ مہنگا ہو چکا ہے، صرف عوام کا خون سستا ہے۔ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ تشدد کی سیاست نہ کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گولی بھی نہیں چلایا مگر پورا پاکستان بنا کے دے دیا ہمیں۔ آپ اپنا سیاست کرے، آپ اپنا تحریکیں چلائے پرامن طریقے سے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی بلوچستان بھر میں تیروں کی بارش ہوگا، تیروں کی بارش۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام خود بھی تبدیلی کے جال میں پھنسے اور ملک کو بھی پھنسا دیا۔ خیبر پختونخوا کے لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، وعدہ کریں آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ سیدھے سادے ہیں، کیوں ان کے جذبات سے کھیلا، کیوں جھوٹے وعدے کیے، کیوں ایسے شخص کو اجازت دی جس نے ملک کو اجاڑ دیا۔ کہاں ہیں 1 کروڑ نوکریاں، کہاں ہیں 1 ارب درخت اور 300 ڈیم؟ کیا 50 لاکھ گھروں میں سے ایک بھی گھر کسی کو ملا؟ یہ شخص خیبر پختونخوا سے دیگر صوبوں میں ایکسپورٹ ہوا ہے۔ نئے پاکستان کے چکر میں پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا۔ جن کو آپ نے پہلے آزمایا ان کو بار بار آزمانا ٹھیک نہیں۔ پہلے تو آپ کو چکر دیا گیا، 8 فروری کو مجھے نہ چکر دے دینا۔ جہاں نواز شریف آپ سے اتنا پیار کرتا ہے وہاں نواز شریف کو آپ کی حالت پہ ترس بھی آتا ہے کہ آپ کیسے شخص کے جھانسے میں آ گئے، اس کے جال میں پھنس گئے آپ، جس نے آپ سے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، جس نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا۔ جن کو گھر ملا ہے ان 50 لاکھ گھروں میں سے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، جن کو گھر نہیں ملا وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ آؤ بتاؤ بھائی، عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے، ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا، ان کے جذبات سے کھیل کے آپ نے ان کا ووٹ لیا اور بعد میں کیا دیا؟ نہ نوکری، نہ گھر، نہ روزگار، نہ کوئی اور۔ یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا۔ ایک بندہ نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت کر رہا تھا تو آپ نے ایسے بندے کو کیوں آپ نے جو ہے وہ اجازت دی جس نے آج پاکستان کو اجاڑ دیا ہے؟ پہلے نواز شریف کو آپ نے نکلنے دیا، آپ کہتے ہو نواز دو۔ یہ تو بھائی آپ کو پہلے پچھلی باتوں کا حساب دینا پڑے گا۔ اور دیکھو آج میرے زمانے میں 10 روپے کلو سبزی بکتی تھی، 10 روپے کلو۔ اگر 10 سال اگر مجھے ملتے، شہباز شریف کو ملتے یا ہم میں سے کسی کا یا اس کو ملتے جو میرے پیچھے کھڑا ہے، تو آج جناب کوئی شخص بے روزگار نہ ہوتا اور کوئی شخص شاید بے گھر بھی نہ ہوتا۔ آپ جال میں پھنسے آپ، اور نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ و برباد کر دیا۔ بولو میں سچ بولتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں؟ کوئی کام گنوانے نہیں آیا، صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اگر انشاءاللہ آپ مسلم لیگ نون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونخوا کی تقدیر بدل دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے، بندے سے ایسی توقعات مت کرو کہ میں تبدیلی لے آؤں گا، میں نیا پاکستان بناؤں گا۔ وہ کدھر ہے تبدیلی؟ ادھر دیکھو تبدیلی ہے، کوئی سامنے تبدیلی ہے، ادھر تبدیلی ہے، کون سی تبدیلی؟ یہ تو مکروں کی سیاست تھی۔ اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ دوسروں کو چور کہنے والا خود پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں کا مقدر اگر لندن ہے تو پھر خیبر پختونخوا کے بچوں کا مقدر جیل ہی کیوں؟ سازشیں کرنے والے ہمیشہ نہیں رہتے۔ سوات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا، کیا جلاؤ، گھیراؤ، مار دو، مر جاؤ، آگ لگا دو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا مقدر ہے؟ آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے یا پھر پیٹرول بم؟ آپ کو تعلیمی ادارے، اسکالرشپس چاہیے یا پھر کیلوں والے ڈنڈے؟ ایک خاتون نے چوری کی ہے تو وہ بنی گالا کے محل میں کیوں قید ہے؟ باقی عوام کی طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں؟ کسی کی گرفتاری یا آزمائش پر خوش نہیں ہوتی۔ 8 فروری کو عوام کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اقتدار میں آ کر خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی ترقی دیں گے۔ سوات والوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا، مریم نواز نے وعدہ کیا تھا آپ کا نواز شریف آپ کو واپس لا کے دوں گی، مریم نواز شریف نے وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ بہت لوگ آئے نواز شریف کی سیاست کو مٹانے کی چاہ دل میں لیے، بہت لوگ آئے جنہوں
उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई, और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। ये सवात के अवाम की मोहब्बत नहीं तो और क्या है। देखते तो होंगे, चाहे अपने घरों में दुबक कर टीवी स्क्रीन्स पर बैठे हो या छुप के कहीं से देख रहे हो, देखते तो होंगे नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले कहीं ना कहीं से देखते तो होंगे। बोलो, नवाज शरीफ को अदालतों में घसीटने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जलावतन करने वाले देखते तो होंगे। 20 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ अपने वतन आपके दरमियान वापस आया था, तो जो लोग कहते थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर देखा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान ने किया। फिर कहने लगे कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत रही है, उसके बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अवाम में नहीं निकल सकती। और आज अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ जहां जाता है अवाम का ठाठे मारता समंदर उसके सामने मौजूद होता है। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। खैबर पख्तूनख्वा में 15 सियासी शख्सियात को शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां मौसूल हो गई हैं और हसास इदारों ने सूबे में धमकियां मिलने वाली सियासी शख्सियात की फहरिस्त तैयार कर ली है। फहरिस्त में कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं, बता रहे हैं सैफ शेरानी अपनी इस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में हसास इदारों ने शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां मौसूल होने वाली सियासी शख्सियात की फहरिस्त तैयार कर ली। साबिक सूबाई वजीर इम्तियाज कुरैशी, सेनेटर हिदायतुल्लाह, नून लीग के साबिक रुकन कौमी असम्बली अमीर मकाम को भी शिद्दत पसंदों की जानिब से धमकियां मौसूल हुई हैं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार पीर मुसव्विर शाह ने GNN के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में धमकियों की तस्दीक कर ली। कहते हैं कि 1 माह कबल नामालूम नंबर से धमकियों की कॉल आई थी, जो मैंने मुतल्लिका इदारों को रिपोर्ट की है। ज़राए के मुताबिक JUIF के मलक अदनान वजीर और एहसानुल्लाह को भी धमकियां मौसूल हुई हैं। सेनेटर बख्ती अफसर और सेनेटर मौलाना अब्दुल रशीद को भी शिद्दत पसंदों ने धमकियां दी हैं। सूबाई हुक्काम के मुताबिक सियासी शख्सियात को मिलने वाली से मुतालिक तमाम अजला की पुलिस को आगाह करने के साथ सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। सैफ शेरानी, GNN, पेशावर। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हैं। हमने अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत भी फराहम किए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। शहरियों की टारगेट किलिंग में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दिए। पाकिस्तान उन ममालिक से राबते में है जहां से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा है। ईरान में पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी है। पाकिस्तान और ईरान ने इस अमल की मजम्मत भी की है। कल उन पाकिस्तानियों की मैयतें पाकिस्तान आ गई हैं। तवक्को है कि ईरान इस वाक़े की तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात फराहम करेगा। वफाकी काबीना ने हार्डशिप कोटे के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। काबीना ने 262 में से 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी है। ज़रा के मुताबिक अद्वियात में जान बचाने वाली अद्वियात समेत एंटीबायोटिक्स और इंसुलिन भी शामिल है। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन शहबाज, ना महंगाई कंट्रोल में हो रही है, अब शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस महंगाई में अब मज़ीद महंगी इंसुलिन खरीदना पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए रैब की जानिब से जो है वो 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी वफाकी काबीना को भेजी गई थी, जबकि वफाकी काबीना ने जो है वो 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक जो है वो हार्डशिप कोटे के तहत जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई है। जबकि हार्डशिप कोटे के तहत जो वज़ारत सेहत ने रैब की सिफारिश पर 262 जान बचाने वाली अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफे के लिए समरी है वो अरसाल की थी। अद्वियात में जो है वो जान बचाने वाली अद्वियात समेत एंटीबायोटिक और इंसुलिन समेत मुख्तलिफ अद्वियात है, इसमें पैराडोल, पैरासीटामोल और जो मुख्तलिफ बच्चों के लिए जो सस्पेंशन यूज होते हैं वो भी इन अद्वियात में जो है वो शामिल है। जबकि अद्वियात कंपनियों ने जो है वो अक्सर अद्वियात की कीमतें कम होने पर अद्वियात जो बनाना बंद कर दी थी, जिससे बाद में देखा गया था कि मुख्तलिफ अद्वियात की किल्लत भी सामने आई थी। तो हम रैब हुकाम के मुताबिक जो है वो अद्वियात की किल्लत को खत्म करने के लिए हार्डशिप कोटे के तहत इन अद्वियात की कीमतों। बहुत शुक्रिया आप हमें तफसीलात से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। PTI चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। काजी मोहम्मद अनवर खैबर पख्तूनख्वा, वलीद इकबाल पंजाब, नूरुल हक कुरैशी सिंध,
सैयद इकबाल बलोचिस्तान, जबकि शाह नासिर गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर। तहरीक इंसाफ एक बार फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन ने शेड्यूल जारी कर दिया। 31 जनवरी 2024 तक रजिस्टर्ड तमाम मेंबरान अपना वोट डाल सकेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम पैनल्स की तफसील तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल वेबसाइट और राब्ता एप्लीकेशन पर दस्तयाब होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 2 फरवरी शाम 8 बजे तक वसूल किए जा सकेंगे। 3 फरवरी दिन 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। 3 फरवरी शाम 6 बजे तक उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। पीटीआई एलामिया के मुताबिक 3 फरवरी रात 10 बजे तक उम्मीदवारों की शिकायत वसूल की जाएंगी। 4 फरवरी 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ट्रिब्यूनल शिकायत की समाअत करेगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम फाइनल पैनल्स की फहरिस्तें 4 फरवरी की शाम 4 बजे वेबसाइट पर शाया की जाएंगी। 5 फरवरी सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी और 6 फरवरी को नताइज का ऐलान होगा। गुज़श्ता रोज पीटीआई की जनरल बॉडी ने रऊफ हसन को मुतफ़िका तौर पर तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के फैसले तक उमर अयूब पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर होंगे। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला जानिसाराने बानी चेयरमैन पीटीआई के नाम से पैनल सामने आ गया है। पैनल ने बानी मेंबर पीटीआई आतिफ अलीम को चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया है। दीगर ओहदों के लिए भी पैनल से उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे। मजीद क्या तफसीलात है नुमाइंदा पेशावर शाहिद जान से जानेंगे। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जानिसाराने बानी चेयरमैन पीटीआई के नाम से नया पैनल सामने आ गया है और पैनल ने बानी मेंबर पीटीआई आतिफ अलीम को चेयरमैनशिप के लिए नामजद कर दिया गया है। जबकि जो नामजद चेयरमैन है उनका कहना है कि दीगर ओहदों के लिए भी पैनल से उम्मीदवार खड़ी किए जाएंगे। नई पैनल जानिसाराने बानी पीटीआई ने अपना मंशूर भी पेश कर दिया है और मंशूर के मुताबिक जो पार्टी का वज़ीर आज़म होगा वो अपने अखराजात इंतहाई कम करेगा और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अलावा कोई दूसरा के पास नहीं होगा प्राइम मिनिस्टर का। इसके साथ साथ पार्टी के मुंतखब अहदेदारों का हर 3 महीने बाद माली ऑडिट होगा। तो ये नया पैनल सामने आ गया है और उन्होंने अपने जो चेयरमैनशिप के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इलेक्शन की गहमा गहमी के हवाले से जिक्र करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने मजहबी बरादरियों से शफकत और एहतराम का रिश्ता जोड़ा। मेरे दौर में अक़लियती बरादरियों के साथ कुछ वाक़यात हुए, हमने वाक़यात के ज़िम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाने की कोशिश की। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि आप सबसे दरख्वास्त है कि नून लीग को वोट देकर कामयाब कराएं। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हम पर लाजिम है। मसीही बरादरी को मुल्क में अमन और सुकून से रहने का पूरा हक हासिल है। जब कभी बदकिस्मती से कभी कोई हादसा हुआ तो गुफ्तगू हुई, दिलखराश वाक़यात हुए और उनके ऊपर हमने न सिर्फ बड़ी हमदर्दी से सुना और उनके ऊपर हत्तुल मकदूर इक़दामात लेने की भरपूर कोशिश की। मगर उसके बावजूद जब कोई इस तरह का वाक़या होता है तो तलखियाँ काफी अरसे तक वो ज़हनों में रहती हैं कि मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी सियासी जिंदगी इस बात से जुड़ी हुई है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मुख्तलिफ बरादरियां हैं, मसीही बरादरी है, हिंदू बरादरी है, सिख बरादरी है, दूसरी जो मजहबी बरादरियां हैं, उनको इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून के साथ रहने का पूरा हक हासिल है। और मियां नवाज शरीफ ने अमली तौर पर चाहे वो इक़्तिदार में रहे या इक़्तिदार से बाहर, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर बसने वाली मजहबी बरादरियों से इंतहाई शफकत मोहब्बत उन्होंने जोड़ा और ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। यकीनन मेरे दौर में बहुत बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए, लेकिन मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में उन वाक़यात को कंट्रोल करने के लिए और जहाँ पर भी जो कानून की जिसने भी खिलाफ वर्जी की है उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए हमने इखलास के साथ कोशिश की। मगर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उसका एहतराम है और यकीनन उन ऑब्जर्वेशंस, उन ख्यालात को हमें मदद कर आगे चलना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं कि पीपल्स पार्टी गरीबों और मजलूमों की जमात है। आवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। सांगड़ में कारकुनान से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा सैलाब आया तो बिलावल मुतासरीन के साथ खड़े रहे। आज सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए घर बन रहे हैं। गैस आपका हक है, विफाक ने आपको हक नहीं दिया। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाए। हम तनख्वाहें डबल करेंगे, मुफ्त तालीम और इलाज मुहैया करेंगे। मैं आसिफा भुट्टो जरदारी आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैं बेटी हूँ बेनज़ीर की और बेनज़ीर गरीब की आवाज़ थी।
बिलावल आपकी आवाज है, अब मैं आपकी आवाज हूँ और ना कभी मेरा भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी खामोश रहेगा और ना कभी मैं खामोश रहूंगी। सियासी जमातों सिर्फ अमीरों को अमीर करना चाहते हैं और गरीबों को और गरीब। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आपके बच्चे भूखे सो रहे हैं या नहीं, उनको सिर्फ इक़्तिदार की लालच है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम का सोचती है, हमने हमेशा गरीब और मजलूम के साथ दिया है। जब शहीद बीवी वजीर आजम थी तो हर कैबिनेट की मीटिंग में उनका पहला एजेंडा हमेशा अवाम की जिंदगी आसान करने था। मेरे भाई बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये वादा करते हैं कि जब इंशाल्लाह वो वजीर आजम बनेगा उसका भी हमेशा पहला एजेंडा गरीब और मजलूम की मुश्किल आसान करने होगा। एक अवाम दोस्त मंशूर है, एक गरीब दोस्त मंशूर है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगी। हम वादा करते हैं कि हम आपका तनख्वाह दुगनी करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको मुफ्त और मयारी इलाज देंगे और आपके बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। वोट की ताकत सिर्फ आपकी है और जब आप अपनी ताकत सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान और भी ताकतवर बनेंगे और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई नहीं रोक सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है और फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा, उन्होंने अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 10 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। साइफर केस का तफसीली फैसला 20 फाउंडिंग्स पर मुश्तमिल है। फाउंडिंग में साइफर, चशमदीद गवाह और सीक्रेट दस्तावेजात की अहमियत शामिल है। फैसले में कहा गया है कि साइफर केस 17 माह की तहकीकात के बाद दायर किया गया। 17 माह की तहकीकात से साबित हुआ मुकदमा ताखीर से दायर नहीं किया गया। वजारत खारजा वज़ीर आज़म से साइफर वापस नहीं मांग सकती। बतौर वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। बानी तहरीक इंसाफ ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। प्रोसिक्यूशन ने न सिर्फ 25 गवाहान बल्कि दस्तावेजात पर मबनी सबूत भी पेश किए। आजम खान का बयान सच्चाई पर मबनी था जिसने प्रोसिक्यूशन के दलाइल को मजबूत बनाया। समात में वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के मुख्तलिफ वकला ने दरखास्तें देकर ताखीरी हरबे अपनाए। बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने 342 के बयान दिए लेकिन दस्तखत ना किए। साबिक वजीर आजम और वजीर खारजा से ऐसे रवैये और ताखीरी हरबों की तवक्कुआत नहीं थी। अदालत का कहना है कि फेयर ट्रायल का हक चालाक मुलजिम के लिए नहीं है। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया जिसका असर पड़ा। बतौर वजीर आजम और वजीर खारजा अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया। अदालत का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5(3)A, 5(1)C, 5(1)D, 9 के तहत कसूरवार करार देती है। अदालत दोनों मुलजिमों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा सुनाती है। तमाम दफात के तहत दी गई सजाओं की मुद्दत फौरी और एक साथ तस्वर होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के खिलाफ 3 मुकदमात पर 3 मुख्तलिफ अदालतों में समाअत हुई। एहतसाब अदालत और एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अलग अलग तारीखें मुकर्रर कर दी हैं, जबकि एक अदालत ने उनके जुडिशल रिमांड में तोसी की है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे इबादुल हक की इस रिपोर्ट में। पुलिस परवेज इलाही को अडयाला जेल से लाहौर लाई, जहां उन्हें पहले एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी समेत 14 मुलजमों के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने मरकजी और शरीक मुलजमों को तरक्याती मंसूबों में किक बैक्स लेने के रेफरेंस की नकूल फराहम की और हदायत की कि आइंदा समाअत 14 फरवरी को परवेज इलाही समेत तमाम मुलजमों पर फर्द जुर्म आयद की जाए। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और किक बैक्स लेने के इल्जाम में नैब ने रेफरेंस दायर किया है। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में एंटी करप्शन कोर्ट में पेश किया गया। एक शरीक मुलजिम की अदम पेशी पर एंटी करप्शन कोर्ट में परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत के दौरान परवेज इलाही ने 2 हाथों से जज को सैल्यूट किया और कहा कि आपसे ही इंसाफ की उम्मीद है। फाजल जज ने परवेज इलाही को बावर कराया कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर आपकी तबीयत ठीक न हो तो पेश न हुआ करें। अदालत ने समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। आखिर में परवेज इलाही को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मोहम्मद खान भट्टी की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के मुकदमे में पेश किया गया। अदालत ने साबिक वजीर आला के जुडिशल रिमांड में 14 फरवरी तक तोसी कर दी और चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस भी जारी किया।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन कहते हैं लोधरा में गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, लोग याद करेंगे कोई काम हुआ है, इलाके की तरक्की के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। लोधरा में तालिबात से खिताब करते हुए कहा पैसे देना कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ बड़ा दिल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि 2013 में आगाज किया था और उसके बाद से हम ऊपर ही जा रहे हैं। ये एक सफर शुरू किया था 2013 में, 11 साल हो गए इस बात को, और 11 साल में हम अभी तक ऐसे ही जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम है कि आप लोगों ने यहाँ पे काम करती हैं। ये लड़कियाँ सारी जो हैं, मैं और अकबर खान तो प्लानिंग वाले लोग हैं ना, असल में तो क्लास में आप खड़ी होती। अब तक हम लोग हैं यहाँ पे, मैं हूँ और मेरी औलाद इंशाअल्लाह ताला मेरा काम आगे लेके चलेगी। दिल तो करता है कि मैं गपशप लेना ही रामा, मगर अगले प्रोग्राम ढेर सारे नहीं, इलेक्शन आई पड़ी है। मुतालिबात तस्लीम करने की यकीन दहानी। पेशावर में साफी कौम ने इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगी अलीशा खट्टर। पेशावर ने अवामी नेशनल पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान समर हारून बिलोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साफी कौम के मुतालबात को तस्लीम करने और इन्हें पूरा करने की यकीन दहानी करवाई है। बिलोर खानदान ने मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी है। मुल्क और कौम के मफाद में इन उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। जो सिक्योरिटी के इदारे हैं बशमूल अवामी नेशनल पार्टी के, सारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सारे जो वर्कर्स हैं, क्योंकि सिर्फ लीडरशिप नहीं बल्कि वर्कर्स और कारकुन भी थ्रेट पे होते हैं, उन सब की सिक्योरिटी को वो कंट्रोल करें और यकीनी बनाए ताकि अच्छे माहौल में हमारे इंतखाबात हो सके। इस मौके पर ANP के सीनियर रहनुमा गुलाम बिलोर का कहना था कि पुख्तूनों पर ये हालात मुसल्लत किए गए हैं जो जारी रहेंगे। किसी भी सूरत हाल में इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए। PTI के साथ मकाफात अमल जारी है। सिक्योरिटी तकलीफ है ये रहेगी, तो इसलिए इलेक्शन होने चाहिए। उसके बाद भी जब इलेक्शन होने जाए उसके बाद भी आपको यही चीज मिलेगी। ये चीज खत्म नहीं होने वाली नहीं है। समर हारून बिलोर का कहना था कि हम सर पर कफन बांधकर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए जाए ताकि आजादाना माहौल में इलेक्शन हो सके। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ अलिशा खट्टर, GNN पेशावर। और लाहौर में PP 168 से नौजवान नून लीगी उम्मीदवार मलिक फैसल अयूब खोखर हल्के में मुतहरिक हैं। हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त फैसल खोखर के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा आकिब। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है लाहौर में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और तमाम सियासी पार्टियां भरपूर किस्म की तैयारी कर रही हैं। वोटर हजरात को जो है कायल करने के लिए उम्मीदवार कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 168 से नून लीग के नौजवान उम्मीदवार फैसल खोखर, जो कि अपने हल्के में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है हल्के के मसाइल भी हल करने के लिए कोशिश। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के बारे में उनकी क्या राय है। जी फैसल भाई, ये बताइएगा, आपका मुकाबला जो है 168 में कुछ सख्त हरीफों के साथ है, तो क्या पैगाम है उनके लिए और हल्के के मसाइल कब तक हल करेंगे आप जीत के? कि हमारा मुकाबला ना किसी सियासी हरीफ के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला अपने आप के साथ है, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ है। हमने कभी भी, क्योंकि सियासी हरीफ तो चेंज होते रहते हैं, जमातें भी इनकी चेंज होती हैं, ये भी चेंज होते हैं। पिछली बार PTI का जोर ज़्यादा था, इस बार हमारा बाकी जमातों का वोट ज़्यादा है, तो इस बार ज़्यादा मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस बार मैदान में ज़्यादा जमाते हैं। फरवरी का सूरज जो है वो मुस्लिम लीग नून की फतह के साथ तुलू होगा और इस इलाके से मुस्लिम लीग नून जो है वो फतह हासिल करके नवाज शरीफ के लिए तोहफा देगी। जी। और मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। तलबा की आगाही के लिए निजी स्कूल में इलेक्शन का इनेकाद किया गया। जी हाँ, और स्कूल के तलबा और तालिबात ने अपनी पसंद के ग्रुप को वोट भी कास्ट किया। सोनिया खानजादा की रिपोर्ट देखते हैं। कौम के मेहमानों को इलेक्शन से आगाह करने का अज़्म। इस हवाले से कराची के निजी स्कूल में ऐसे ही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा को इलेक्शन के फवाइद और इसके तरीक़ेकार के मुतालिक बताया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी इलेक्शन कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का कहना था कि बच्चों में आज शऊर बेदार करेंगे तो कल मुस्तकबिल चमकेगा। ये स्टूडेंट में एक आगाही होगी कि उनको पता चलेगा इलेक्शन प्रोसेस क्या आएगा, इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या काम कर रहा है और वोटिंग का प्रोसेस क्या है। तो ये सारी ये जो इवेंट है इसकी एक बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज उनको कन्वे होगा स्टूडेंट्स को। स्कूल प्रिंसिपल का कहना था कि तलबा के जरिए घरों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। हमने स्कूल में एक एक्टिविटी तरतीब दी थी, एक प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया था कि बच्चों को वोट के बारे में नो हाउ देना था। स्कूल इलेक्शन के नाम से एक प्रोग्राम था। वोट
वोट कास्ट करने वाले तुलबा इंतहाई पुरजोश दिखाई दिए। कहा अपने पसंद के ग्रुप को वोट दिया है, जबकि उम्मीदवार तुलबा ने दोस्तों की हर मुमकिन मदद करने का इरादा जाहिर किया। अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं सबसे पहले तो अपने दोस्तों में एक दावत बांटूंगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं उनकी हर पल मदद कर सकूं। जब मैं जीतूंगी तो मैं जैसे कि अपने दोस्तों का कोई काम कंप्लीट नहीं होगा तो मैं उनको कॉपियाँ दिखाऊंगी और है ना, अपने जैसे कोई दोस्त के पास लंच नहीं हो तो मैं उनको लंच भी करवाऊंगी। स्कूल इलेक्शन के मौके पर तुलबा के 6 ग्रुप तश्कील दिए गए थे। कैमरामैन फैसल खान के साथ सोनिया खानजादा, CNN कराची। माह जनवरी में महंगाई में 1.8% इजाफा हुआ है। सालाना शरह 28.3% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई तक जनवरी महंगाई की औसत शरह 28.73% रही। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, कहिएगा महंगाई मजीद बढ़ गई है? जी बिल्कुल, अदारा शुमारियात ने महंगाई के जो दादोशुमार हैं वो जारी किए हैं और उनका कहना है कि माह जनवरी में महंगाई में 1.8% इजाफा हुआ है और सालाना सतह पर अगर देखा जाए तो इसकी शरह 28.3% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता माह शहरी इलाकों में महंगाई 30.2% और देही इलाकों में 25.7% रिकॉर्ड हुई है। जुलाई ता जनवरी महंगाई की औसत शरह जो है वो 28.73% रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद, इस बारे में आप बता रहे थे। बात करें बदलते मौसम की तो मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली इलाकों में बर्फबारी और पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश के बाद धूप निकल आई है और बारिश से खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई है। मौसम सरमा के रंगों के मजीद अहवाल जानते हैं, आइए इस रिपोर्ट में। कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश तो कहीं धूप। सरमा रुत में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। बर्फबारी के बाद मरी और सवात के बर्फ पोश पहाड़ सूरज की किरणों से जगमगा उठे। बर्फबारी के बायस मरी में सयाह और मकामी लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। एक्सप्रेस वे पर शदीद फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर रही। बर्फबारी के बायस गलियात की राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं। शांगला के बलाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नथिया गली में 2 फुट और शांगला गली में 2.5 फुट बर्फ पड़ चुकी है। सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर में बर्फबारी देखने के लिए पीर चनासी पहुँच गयी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला साफ और मौसम सर्द है। बारिश के बाद मैदानी इलाकों से खुश्क सर्दी की छुट्टी हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में बारिश के बाद धूप निकल आई। महकमा मौसमियात की पेशगोई है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में 4 फरवरी तक मजीद बर्फबारी और बारिश हो सकती है।